الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، نماز سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں وہ آپ کر لیں، کیونکہ 2-3 ہفتوں سے ہم نماز سے متعلق بات کر رہے تھے۔ بہت سارے سوال جو ہیں وہ میرے سامنے آئے، مجھے واٹس ایپ پہ ان کے جواب بھی دینے پڑے، اور اسی لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ سارے سوال جو ہیں وہ تمام لوگوں تک پہنچنے چاہیے، ان کے جوابات، جس سے کہ ان کے لیے آسان ہو جائیں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرابوں پہ بھی مسح ہو جاتا ہے، جو جرابیں آپ پہنتے ہو ان پہ مسح ہو جاتا ہے۔ تو مسح کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ گیلا کیا اور ایک بار اوپر کی طرف جرابوں پہ ہاتھ پھیر لیا، دائیں طرف دائیں ہاتھ سے اور بائیں طرف بائیں ہاتھ سے، یہ آپ کا جرابوں کا مسح ہو گیا۔ صبح کو آپ فجر میں ایک بار وضو کر لیں اور پاؤں صاف کر کے جرابیں پہن لیں، سارا دن ان پہ مسح کریں۔ 5 نمازیں آپ مقیم ہیں اپنے شہر میں تو 5 نمازیں، اور اگر آپ مسافر ہیں تو 10 نمازیں، یعنی کہ 24 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے تک آپ کا مسح جو ہے وہ کرنے کا آپ کو سہولیت دی گئی ہے، اور یہ رخصت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ رخصت سے فائدہ اٹھانا، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے خوش دلی سے آپ یہ کام کرا کرو۔ ایسے ہی قصر کا معاملہ ہے کہ قصر کی نماز بھی آپ خوش دلی سے پڑھا کرو، یہ نہ سوچا کرو کہ آدھی نماز ہو رہی ہے ہم تو پوری ہی پڑھ سکتے ہیں، ہم صحت مند ہیں۔ یہ سوال سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ چکے، بہت آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، تو حضور نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، ان کا فائدہ اٹھایا کرو۔ تو باقی اور سوالوں میں انشاءاللہ بات چیت آ جائے گی۔ ایک تو میرے پاس یہ سوال آیا تھا کہ اگر سنتیں پڑھنے کا وقت یا دل نہ ہو تو کیا کریں؟ تو نہ پڑھیں۔ میں تو پچھلے بیان میں بتا چکا، شاید پچھلے سے پچھلے ہفتے، کہ 2 ہی اصطلاحات ہیں، ایک فرض اور ایک نفل۔ آپ سے پوچھ گچھ جتنی بھی ہوگی وہ سب فرض نمازوں کی ہوگی، سنتوں کی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ سنتوں کی احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک میں بات فرمائی ہے کہ اگر کسی کی فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی ہوگی یا کمی ہوگی تو وہ سنتوں سے پوری کر دی جائے گی۔ اور ہمیں اپنی ساری کمزوریوں کا پتہ ہے کہ ہم کتنے نمازی تھے یا ہیں، کیسی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ کمی پوری کرنے کے لیے میرے نزدیک سنتیں پڑھتے رہنی چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں کے اوپر جبر نہیں ہے اللہ کا کہ آپ سنتیں پڑھو، فرض تو آپ کے اوپر ہر حال میں آپ کو پڑھنے اس کا حساب دینا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، بنا ان کے ایمان نہیں ہے، بنا ان کے نماز نہیں ہے، وہ سب بیکار کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح سے سمجھو کہ ہر چیز کی جتنے بھی کلمے کے بعد 4 فرض ہیں، ان 4 فرضوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے نفلی عبادت جوڑی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اس لیے سنت بن گئی۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بنا سنتوں کے نماز نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کبھی سنا کہ اگر آپ 3 روزے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھتے تھے، یا پیر اور جمعے کا روزہ رکھتے تھے، وہ ان کے بنا روزے نہیں ہیں؟ انہیں کوئی نہیں کہتا۔ صرف اور صرف نماز کے بارے میں ہمارے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، اسی لیے بے بہرا ہو گئے لوگ اور نماز نہیں پڑھتے۔ 1 منٹ بیٹے، سوال جواب کا ہوگا۔ تو اسی طرح سے آپ کا حج ہے، فرض حج کے بعد آپ نفلی حج کر سکتے ہو، لیکن آپ پہ کبھی آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کی گئی کہ آپ نے نفلی حج کیوں نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر کبھی سختی نہیں کی گئی کہ آپ اس سے آگے 30% 40% کیوں نہیں دیتے، کیونکہ فرض تو 4 ہیں، اور سنتیں آپ دیکھو نا، ظہور کی سنتیں 6 ہیں فرضوں سے زیادہ۔ تو اگر آپ سے یہ کہا جائے بھائی 2.5% تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، 5% اس کی ایکسٹرا بھی دو ورنہ آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، کبھی نہیں کہا جاتا۔ تو یہ ہماری اپنی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں کی۔ ہاں، یہ ایک حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد فجر کی سنتیں اور وطر جو ہے اہم ترین نمازیں، تو انہیں تو آپ ضرور دانتوں سے پکڑ کے رکھو۔ باقی اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا کسی ٹائم تو آپ چھوڑ دیا کریں، کبھی کبھی چھوڑا بھی کریں جان بوجھ کے، جس سے فرضوں سے جو ہے وہ آپ کو اہمیت کا پتہ لگ جائے کہ فرضوں کی اہمیت کتنی ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے انہیں، تراویحوں کو بھی اور سنتوں کو بھی۔ تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں اور جواب دوں گا۔ ایک سوال اور یہ ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے یا دل نہ لگے تو کیا کریں؟ بھائی نماز تو آپ پڑھتے ہی رہو، آپ کا دل ہو نہ ہو، کیونکہ یہ فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے۔ حالانکہ خوشی خضو کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، جس سے کہ آپ کو اس کا بہترین اجر اللہ کے یہاں ملے۔ لیکن آپ نماز نہیں چھوڑنی کسی بھی قیمت پہ، چاہے
کیونکہ اس کی وجہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، بیماری میں، جنگ میں نماز پڑھی ہے، تو کسی بھی قیمت پہ نماز معاف نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب پہنچے اور کہنے لگے جی میری طبیعت نماز کو نہیں ہوتی لیکن میں پھر بھی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا چھوڑتے تو نہیں؟ کہ نیچے کبھی نہیں چھوڑتا، پڑھتا ہوں۔ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بڑا دل لگتا ہے، میرا دل نہیں لگتا۔ انہوں نے بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ کہ جی اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے تجھے دگنا اجر مل جائے۔ جو لوگ، بہت سارے جو لوگ ہیں جن کا تم بتا رہے ہیں، وہ انہیں مزہ آتا ہے، وہ مزے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو تمہاری نماز ان لوگوں سے بہتر ہے، تمہارا طبیعت نہیں تھی پھر بھی تم پڑھ رہے، تو اس لیے نماز کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنی۔ ہر حال میں نماز جو ہے وہ آپ کو، کیونکہ فرض ہے تو کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ۔ ایک اور سوال تھا کتنے سال کے بچوں کو نماز پڑھائیں؟ بھائی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ بات فرمائی ہے ایک حدیث میں کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا بچہ نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، سختی کرو۔ تو نماز کا جو معاملہ ہے آپ اپنے گھروں میں دیکھو، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ کو جو سنتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی، آپ کی مائیں نمازیں پڑھتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوا اکثر مصلی پہ 1-1.5 سال تک کے بچے جو ہیں وہ سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، کیونکہ وہ دیکھ کے آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو اور پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ گھر میں ضرور نماز پڑھا کریں، اس سے آپ کے بچوں کو تلقین ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ مسجد جو ہے اس کے لیے ایک کرائیٹیریا میرے خیال میں، یہ حدیث جو ہے، اگر آپ بچوں کو 7 سال 6-7 سال کے بچوں کو لے کے جاؤ گے تب تو ٹھیک ہے، بہت چھوٹے بچوں کو مسجد نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ ہماری مسجدوں کو بچوں سے اور دیوانوں سے دور رکھو۔ تو اس لیے بچوں کو، جو بہت چھوٹے بچے جنہیں پیشاب لیٹرین وغیرہ کا اندازہ نہ ہو، انہیں، اور جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں انہیں مسجدوں سے دور رکھنا چاہیے۔ ویسے اگر کوئی بچہ کبھی چلا جائے وہ پیشاب کرنے بھی لگے تو ایک دم شور نہیں مچانا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو ایک دم اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ میں 1-2 منٹ کی بات آپ کو بتا دوں۔ ایک بار بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بدو نے پیشاب کر دیا تھا مسجد میں اور صحابہ مارنے دوڑے تھے۔ اس واقعے میں ایک بہت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب صحابہ مارنے دوڑے اسے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا انہیں اور اسے پورا پیشاب کرنے دیا۔ کیونکہ آپ نے یہ بات شاید سنی ہو یا نہ سنی ہو، میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ اگر جھٹکے سے پیشاب کسی کا روک دیا جائے تو اسے بہت، کئی بار کینسر تک کا خطرہ ہوتا ہے، بیماری کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیل، بھینس یا گھوڑے پیشاب کرتے ہوں تو ان کے مالک روک دیتے ہیں ٹھیلے کو، چاہے پیچھے ٹریفک رک جائے، اسے پیشاب پورا کرنے دیتے ہیں۔ یہی واقعہ ایک بار حضرت حسن کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ انہوں نے پیشاب کر دیا۔ حضور کو محسوس ہوا انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، پورا پیشاب کرنے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو اٹھا کے یوں پھینکتے ہیں نا بچوں کو، کیونکہ ہم تو بہت پاک بنتے ہیں اپنا آپ، حضور سے زیادہ کوئی پاک ہے؟ پورا پیشاب کرنے دیا، اس کے بعد اپنا جسم پاک کر لیا۔ تو اس لیے میں نے بات اس لیے بتائی کہ ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کو دکھے تو آپ شور مچا دو مسجد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا، منع کر کے نہیں کوئی مانتا لے کے آیا تو کم سے کم اس بچے کا ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مسئلے کے بارے میں بتایا ہے، مسئلے کے بارے میں بتایا ہے، یہ کون سے موضوع کے، چمڑے کے یا عام موزے کپڑے کے بھی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مسا جو ہے موزے چمڑے کے ہوں یا کوئی سے بھی موزے۔ بھائی حدیث پاک میں تو موزے لکھا ہوا ہے، اور حدیثوں کی کتابوں میں جو ترجمہ کیا ہے اس میں بریکٹ میں چمڑا لکھ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تو موزے تھے، چمڑا نہیں تھا۔ آپ خود سوچ کے دیکھیں، جتنی بھی نعمتیں، جتنی بھی رخصتیں، جتنی بھی عنایتیں ہیں اللہ کی، وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، صرف امیروں کے لیے نہیں ہے۔ چمڑے کا موزہ 300 روپے کا کوئی مزدور نہیں خرید سکتا۔ تو اس لیے عام موزہ ہو، بہت باریک نہ ہو، جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں موزے، مطلب باریک جو جس میں جسم جھلکے، ٹرانسپیرنٹ، وہ نہ ہو، موٹے موزے ہوں جیسے آپ لوگ پہنتے ہو، ہلکا پھلکا پھٹا ہو تب بھی چلے گا۔ غریبوں کے موزے ہلکے پھلکے پھٹ جاتے ہیں، لیکن سردی میں آپ دیکھو آدھا وضو رہ جاتا ہے اگر آپ مسا کرتے تو حدیث میں موزہ لکھا ہوا ہے، نہ کہ چمڑے کے موزے۔ ابھی یہ ذکر آیا کہ دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے مسکین کے سر پر ہاتھ رکھے، تو اس مسکین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مسکین دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے مسکین اسے کہتے ہیں جو کما تو رہا ہو اور اس کا خرچ پورا نہ ہو رہا ہو،
सड़कों पे हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मजदूर हमें मजदूरी करते हुए मिलते हैं। आप सिर्फ हुजूर की एक ही सुन्नत पे अमल कर लिया करो कि आप किसी दिन किसी मजदूर का हाथ चूमें। मेरे आका हुजूर के हाथ चूमा करते, उसके मजदूरों के हाथ चूमा करते, आप उन्हीं के सर पे हाथ रख दिया करो। मैं तो सिर्फ इसी नियत से उनकी पीठ पे हाथ फेर दूंगा, सर पे हाथ फेर दूंगा कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी सुन्नत ही हमारे काम आ जाए। तो मिस्कीन तो वो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और पूरा ना कर पा रहे हैं अपने घर। सर हम दिल्ली गए हुए हैं और वहाँ हमारा अपना खुद का ذاتی मकान या हमारे भाई का मकान हो तो क्या जब भी कसर पड़नी है नमाज? इनका सवाल यह है कि अगर दिल्ली गए हुए हों और वहाँ हमारा अपना मकान हो या भाई का मकान हो तो वहाँ भी कसर पड़े। भाई अगर आपका अपना मकान है ज़ाती और आप ताला लगा के उससे आते हो और यहाँ भी आपका अपना ज़ाती मकान है तो आपकी दोनों जगह नमाज पूरी होगी। लेकिन आपके भाई का मकान हो, आपके वालिद का मकान हो, या जो बच्ची शादी हो गई उनका मायका हो या उनकी ससुराल हो, मकान उनका अलग हो, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोगों का एक ही मकान होता है। बाकी जो मकान होते हैं उनकी औलाद के या उनकी सास ससुर के या उनके भाइयों के, मतलब इस तरह से है मामला। तो हर जगह कसर होगी आपकी, सिर्फ जहां आप मुकीम हो वहां पे आपके लिए जो है पूरी नमाज पढ़नी है, बाकी सब जगह कसर है आपकी। हाँ, ये इस्तिस्ना है जो मैंने बताया कि अगर आपका ही मकान है, वहाँ आप किसी फ्लैट में वहाँ जाते हो और वहाँ ताला लगा के आते हो और आप मालिक हो उसके, कोई और उसे यूज़ नहीं करता, तो वहाँ आपको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। या आप 15 दिन 14 दिन के इरादे से, या बहुत सी रिवायतों में 18 दिन भी हैं, बहुत सी रिवायतों में 22 दिन भी हैं, लेकिन 14 दिन, क्योंकि जिस खित्ते में हम रहते हैं हमें अपने उलमाए दीन का यहाँ का भी एहतराम करना चाहिए, तो 14 दिन की नीयत आप रखो। अगर आप 14 दिन के लिए गए तो ज़्यादा उसके लिए, तो फिर आप पूरी नमाज। एक साथी ने पेपर दिया, कुछ सवाल पूछे हैं कि हैज़ के दिनों में क्या करें कि नमाज की आदत ना छूटे। इनका सवाल ये है कि जो हमारी बहन माएँ बेटियाँ हैं उन्हें हैज़ आता है, उन दिनों में उन्हें नमाज ना पढ़ने का हुक्म है, तो उन दिनों में आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है नमाज से, तो क्या करें? ये वाकई बहुत बड़ा मसला है और बहुत ही बढ़िया सवाल किया जिसने भी किया। मैं अक्सर जो मेरे पास आती हैं मेरी बच्ची यहाँ पे दिखाने के लिए, उनमें भी अक्सर ये सवाल एक दो ने किया मेरे से, तो मैंने उन्हें जवाब दिया है कि उन दिनों में, क्योंकि पैड या कपड़ा तो लगा के रखती हैं बच्ची, वज़ू करें नमाज के टाइम पे और मुसल्ले पे बैठ जाएं, जो ज़बानी दुआ याद हैं वो पढ़ती रहें या अल्लाह से दुआ करती रहें, अपनी तस्बीहात पढ़ लें, क्योंकि ज़बान पाक होती है। लेकिन उस टाइम मुसल्ले पे ज़रूर बैठे, चाहे 5 मिनट के लिए बैठे, उससे वो आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगी। बेहतरीन तरीका ये है कि उन दिनों में ये सिलसिला अपना जारी रखें। बच्ची को बार बार हैज़ आता है, कुरान का ट्यूशन और नमाज नहीं पढ़ पाती, क्या करें? देखिए जी, इनका सवाल ये है कि बच्ची को बार बार हैज़ आता है, कुरान का कोई ट्यूशन लगा हुआ हो या नमाज का मामला हो, वो नहीं पढ़ पाती। आज मैं आपको ये बता दूं, उलमाए दीन का तमाम इत्तफाक है इस बात पे कि हैज़ जो है वो 8 से 10 दिन तक है। 10 दिन के बाद बीमारी है, कपड़ा लगा के गुस्ल करके पाक होके नमाज शुरू कर दें। अल्लाह को तमाम हमारी बीमारी है, हमारी मजबूरी है, हमारी तमाम कमज़ोरियों का पता है। तो 10 दिन तक तो आप इंतज़ार करें, उसके बाद अगर नमाज छोड़ती हैं तो आप गुनाहगार होंगी अल्लाह के यहाँ, क्योंकि सिर्फ हैज़ की नमाज़ें माफ़ हैं। साथ में मैं ये भी जोड़ दूँ कि बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास ये आती हैं कि जी हमें पानी आता है, जिसे लिकोरिया कहते हैं, सफ़ेदी कहते हैं, उसकी वजह से भी हम नमाज नहीं पढ़ पाते। तो लिकोरिया, सफ़ेदी या कोई और मामला हो, उसकी नमाज माफ़ नहीं है। सिर्फ इस्तिहाज़ा का जो खून होता है, जो 40 दिन का मामला है, 40 दिन के बाद भी अगर खून आता रहता है बच्चा होने के, तब भी गुस्ल करके नमाज पढ़नी है, पाक होके कपड़ा लगा के। और हैज़ भी 10 दिन से ज़्यादा अगर आता हो तो उसकी 10 दिन की लिमिट है, उसके बाद बीमारी है, इलाज कराया जाए, नमाज पढ़ी जाए। और कोई भी सफ़ेदी या किसी पानी आने की कोई नमाज माफ़ नहीं है, ध्यान रखें, कपड़ा लगा के रखें, अगर गिलगिलाहट भी हो रही तब भी पढ़ें। दूसरी बात यह है, क्योंकि शरीयत जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई भी है हमें, हम अपनी मर्जी से अपने दिल से नहीं चल सकते कि आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप नमाज छोड़ देंगे। आपको अल्लाह उसके रसूल के ताबे होके जो है नमाज पढ़नी है। एहतलाम हो गया हो, टाइम निकल रहा हो फजर का, तो नमाज कैसे अदा करें? इनका सवाल ये है कि फजर के टाइम नमाज के लिए उठे और टाइम बिल्कुल नहीं है नमाज में, 5, 7, 10 मिनट हैं और नहाएंगे तो नमाज का टाइम निकल जाएगा, तो क्या करें?
भाई बस हल्का सा इस्तंजा करें, तयम्मुम करें, नमाज पढ़ लें, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि नमाज किसी भी कीमत पे न माफ़ है और न क़ज़ा है इस्लाम में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज जानबूझ के क़ज़ा नहीं की, किसी सहाबी ने नमाज क़ज़ा नहीं की। तो आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर गुस्ल कर लें। अरे जो सुन्नत मौक़्क़दा है उनको जानबूझकर छोड़ना क्या गुनाह में शामिल है? इनका तो आपको मैंने अभी जवाब बहुत तफसील से दिया इस बात का कि सुन्नत मौक़्क़दा हों, वाजिबात हों या सुन्नतें हों। ये दो ही इस्तिलाहात हैं इस्लाम में कि एक तो फ़र्द और एक नफिल। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवातर की या कम भी की, वो सुन्नतें बन गई। लोग कहते हैं कि सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ना गुनाह है। सुन्नत को सुन्नत समझ के हकीर समझना गुनाह है, छोड़ना गुनाह नहीं। फिर तो आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। ऊँट घर के बाहर बांधना सुन्नत है, ऊँट की सवारी करना सुन्नत है, बीवी एक से ज़्यादा करना सुन्नत है, बहुत सारी चीज़ें मैं गिनवा दूँगा, शाम हो जाएगी यहीं। मगर आप ये समझो किसी सुन्नत को हकीर नहीं समझना। आप अगर कोई सुन्नत, मान लो आपने फ़र्द नमाज पढ़ ली, मैं तो नहीं पढ़ता, पढ़ते रहे चाहे रसूल पाक, बस वहाँ फंस गए आप अगर जल्दी में हैं या आपके दिल नहीं चाह रहा, फ़र्द आपने पढ़ दिया। मैंने बहुत वजाहत से बताया कि आपको कोई ये नहीं कहता कभी भी कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़े रखते थे हर महीने के और 2 रोज़े रखते थे हफ्ते के, पीर और जुमे के, आपको किसी ने कहा कि वो सुन्नत मौक़्क़दा है रोज़े? कहती इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा। हालांकि मैं भी ज़रूरी समझता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो 12 रकात वाली जो हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी बहुत अहम तरीन हदीस है कि वो ज़रूरी है 12 रकात। लेकिन क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने आपके ऊपर डंडा नहीं चलाया इस मामले में, डंडा आपके ऊपर फ़र्ज़ों का चलेगा। इसी तरह 30 रोज़ों का चलेगा, महीने के 3 रोज़ों का या हफ्ते के 2 रोज़ों का नहीं चलेगा। इसी तरह से जो सदक़ात हैं, ज़कात के अलावा आपके ऊपर कोई डंडा नहीं चलेगा 2.5% अगर आप अदा कर रहे हैं। एक बार आपने ज़िंदगी में हज कर लिया, दूसरी बार का नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस तरह समझो चीज़ों को, नहीं छोड़ोगे बहुत सवाब का काम है, नफली हज करोगे बहुत सवाब का काम है, नफली रोज़े रखोगे बहुत सवाब का काम है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा और आपके लिए वहाँ कंपलसेशन बनेगा जो कोताही आपसे हुई फ़र्ज़ों में। लेकिन डंडा नहीं चलेगा उनकी वजह से आप, क्योंकि एक हदीस पाक मैं सुनाऊँ आपको, शायद बताई थी मैंने। एक नए नए ईमान में आए थे सहाबी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि हुज़ूर मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए कि मेरी निजात के लिए काफ़ी हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई 5 वक्त की फ़र्ज नमाजें, रमज़ान के 30 रोज़े और पैसा हो तो ज़कात 2.5%, जब तक हज की फ़र्जियत नहीं आई थी। तो ना हुज़ूर बस कि हाँ, ये नमाज फ़र्ज क्या, हाँ कि हुज़ूर ना मैं इससे कम करूँगा ना मैं इससे ज़्यादा करूँगा। तो ये कह के वो चल दिए। जब वो काफ़ी दूर चले गए तो बाकी बैठे हुए सहाबा से कहा कि अगर ये अपने कौल पे पक्का रहा तो ये जन्नती है। कहाँ रह गई सुन्नत है? हदीस बता रहा मैं आपको, बहुत मशहूर हदीस है, किसी भी आलिम दीन से पूछ लो। बाथरूम में अगर है और अजान की आवाज़ आ रही है, जवाब देना ठीक है? देखो जी, बाथरूम के 2 हिस्से हैं आजकल जो मॉडर्न बाथरूम है। एक हिस्सा तो लैट्रीन का, जो जहाँ पे आप कमोड लगा हुआ हो या सीट लगी हुई हो, वहाँ बैठ के लैट्रीन कर रहे हो तो अजान आए तो आपको जवाब नहीं देना। लेकिन उससे अलग आप हटके जो आपका नहाने का हिस्सा है, वहाँ तो आप दुआ भी पढ़ सकते हो और जवाब भी दे सकते हो। हमारे जो जहनों में ये बात बैठी है ना कि हमने दरवाज़ा खोला अंदर पहुँचे तो सारा का सारा जो है वो टॉयलेट है। टॉयलेट वो हिस्सा है आपका जहाँ पे आप सीट पे बैठ के लैट्रीन करते हैं। बाकी आप फिर नमाज में पैंट मोड़ लेते हैं, लेके फोल्ड करते हैं, बिल्कुल जायज़ नहीं है मेरे नज़दीक, तो मेरे भाई बिल्कुल जायज़ नहीं है। इनका सवाल यह है नमाज में पैंट मोड़ लेते हैं, वो क्या ठीक है? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कपड़े मोड़ने को मना फरमाया। और मेरे नज़दीक बड़े गुनाहों में है टखनों से नीचे लटकाए रखना पैंट, ये तहमत है। तो नमाज नहीं, वैसे भी नहीं रहनी चाहिए। तो मोड़ना तो और ज़्यादा कबाहत की बात है कि आपकी छींटें आई हुई हो पेशाब की या किसी चीज़ की, और आपने गीले हाथों से उन्हें वज़ू करने के बाद मोड़ा, वो आपके हाथ भी गए। तो इसलिए पहले ही पेंटें आप जाकिर नाइक को देखो ना, आपने देखा होगा उन्हें, और भी मैंने बहुत सारे यहाँ हमारे उलमाए दीन यहीं हनफी हजरात देखो, आप बड़े बड़े टूर करते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, उन्हें कहीं नहीं शर्म आती। ये हमारे मदरसे के लोग
बच्चे अपना अब तो पैंटें ही पहनने लगे, तबलीग जमात के बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा पैंटें पहनने लगे, कोई उन्हें शर्म नहीं आती टखने खाली करने में, काहे की शर्म इसमें। पहले हमें अल्लाह और अपने रसूल को खुश करना है। अच्छा, कुछ लोग पैंट शर्ट में जो नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई तुम ये शर्ट निकाल दो, तो शर्ट निकाल देते हैं लोग। मतलब पैंट के अंदर से शर्ट बाहर निकाल लो। जी जी। वो कुछ लोगों का कहना है क्योंकि पीछे से खुले उन्हें लगता है कि नंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी पैंट लूज होनी चाहिए। हुजूर ने टाइट कपड़े पहनने को मना फरमाया। अगर आपकी पैंट लूज है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं कभी निकालने की, और अगर आपकी पैंट टाइट है तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए, आपके कूल्हे भी और आपके जो आज़ा उभार हैं, जिससे कि पीछे वाले का ध्यान ना भटके। ये प्लास्टिक की टोपी के बारे में, टोपी तो कोई ज़रूरी नहीं है, दीन का हिस्सा ही नहीं है। सर ढकना सुन्नत के हिसाब से अगर आप ढकते हो तो बढ़िया बात है। ये तो आप इस तरह से सोचो ना, अगर आपको किसी महफिल का कोई इनविटेशन मिले, किसी शादी का, आप वहाँ मान लो सर ढक के जाना चाहते हो सर्दी की वजह से, तो आप प्लास्टिक की टोपी लगा के चले जाओगे, और जिसके आगे आप खड़े उसकी हाजिरी का अगर आपको एहसास ही नहीं है तो आपकी क्या नमाज है फिर? प्लास्टिक की टोपी में आप जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप बेबहरा हो अल्लाह से, आप किसके आगे खड़े आपको एहसास ही नहीं है। गंदी मैली टोपियाँ जो हैं, मतलब गंदी, इस्लाम में तो हुजूर ने फरमाया सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। इतनी मैले चढ़ी हुई होती हैं उस टोपी पे। मेरी तो कई बार मैं बिना सर ढके नमाज पढ़ रहा होता हूँ, पीछे से कोई टेक दे तो इतना गुस्सा आता है नमाज के बीच में कि इसे पता नहीं मस्जिद से बाहर धक्का दूं। और क्या पूछ रहे थे? टोप पहन के कई बार लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो टोप अगर जैसे सजदा करते हुए माथे टोप पीछे कर लें, ऐसे घुमाए हुए देखा मैंने बहुत सारे लोगों को। नहीं, मतलब जैसे टोपा ऐसे हमारे हाँ हाँ हाँ, तो बेहतर ये है कि माथा लगे जमीन पर, पेशानी, लेकिन हाँ। अगर पेशानी के ऊपर ये आ जाए और हम सजदा करें तो कोई कराह तो नहीं है। इनका सवाल ये है कि टोपा पहन के अगर टोपा आगे हो माथे पे तो सजदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सजदा तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा पसंदीदा ये है कि आपका माथा जो है वो रगड़ा जाना चाहिए ज़मीन से। लेकिन क्योंकि हमारी मस्जिदों में तो कालीन बिछ गया और गद्दे बिछ गया, तो वहाँ लोग सजदे करते हैं, तो फिर टोपे में भी कोई नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि आपका जो सजदा है वो किसी हार्ड चीज़ पे होना चाहिए। मैंने खुद देखा बहुत सारी औरतें हमारे घरों की और बहुत सारे लोग जो मिट्टी का ठीकरा रख लेते हैं, जिससे कि उनका जो माथा है वो मिट्टी पे रगड़ा गया। नमाज खड़ी हो जाए तो क्या सुन्नत तो पूरी करें अगर पढ़ रहे हो? मेरे ख्याल पिछले हफ्ते मैंने ये बात बताई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि फ़र्ज़ नमाज की इकामत के बाद कोई नमाज नहीं है। तो अगर आप सुन्नतें पढ़ भी रहे तो आपको वहीं सलाम फेर के फ़र्ज़ों में शामिल होना है, ये हुक्म। अगर आपकी अत्तहियात रह गई या थोड़ी बहुत आप अत्तहियात में बैठे एक आध दुरूद रह गया तो छोटा वाला दुरूद पढ़ के सलाम फेरो और जो है उसमें शामिल हो जाओ। लेकिन आप सुन्नतें पूरी करते रहो, उधर इमाम साहब तिलावत करते रहे, तो ये तो कुरान की भी एक आयत है, सूरह आराफ में 204 नंबर आयत है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो और गौर से सुनो ताकि तुम पे रहमत हो। तो आप अल्लाह की रहमत से ही दूर हो रहे हैं, अल्लाह की आयत का ही मजाक उड़ा रहे हैं। बवासीर का खून आता रहता है, कैसे नमाज पढ़े? भाई बवासीर का खून आता रहता है, कैसे नमाज पढ़े? इनका सवाल ये है, ये तो शरई उधर है। अगर तो आप इलाज कर चुके उसका बहुत और उसके बाद भी खून नहीं रुक रहा तो आप कपड़ा लगा के रखें अपनी लैट्रिन की जगह पे और वज़ू करके नमाज पढ़ें, फिर कपड़ा बदल लें उसके बाद। ये तो आपके लिए मजबूरी है, ये अल्लाह की तरफ से छूट है आपको, जो शरई उज़र कहलाते हैं। ये तो हर मुफ्ती साहब ने फतवा दिया हुआ है इस बारे में। वजू नहीं रहता, बार बार करना पड़ता है, क्या करें? हाँ, बहुत से लोगों को गैस की भी दिक्कत होती है, ये भी बात ठीक है। तो उसके लिए भी वही शरई उज़ुर में आएगा कि आपने एक बार वज़ू किया, नियत बांध ली और आपको पता है कि गैस लीक होती जाएगी, आपने तमाम इलाज कर लिए, उसके बाद भी आपकी गैस बंद नहीं होती, तो आपकी एक वज़ू से एक वो नमाज हो जाएगी, चाहे बीच में आपका वज़ू टूट जाए। जैसे आप ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ की नियत आपने बांधी, उसके बाद आप नमाज शुरू करी, इतने में आपकी गैस निकलनी शुरू हो गई, तो आपकी नमाज पूरी आप 4 रकात पढ़ दो, इंशाल्लाह नमाज पूरी हो जाएगी। ये भी शरई उज़र में आएगा भाई। कुछ लोग जो है पूरा नमाज पढ़ते रहे, पूरे अपने आप को कंबल से ढक देते हैं सर्दियों में, तो उसमें कराह नहीं है। कंबल से ढक लेते हैं पूरे को यानी हाथ भी बाहर नहीं उतर गया, अंदर पूरा कंबल में। नहीं, तो इनका सवाल यह है कि पूरे को पूरा अपने आप को ढक के नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन पूरे होने चाहिए।
जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ने का तरीका बता के गए, वो अगर एक्शन आप पूरे कर रहे हैं, मान लो हाथ निकाल के आप सजदा भी कर रहे हैं, हाथ निकाल के आप रुकू भी कर रहे हैं, तो बांधे रहो हाथ, ऊपर से कंबल हो, आपने नियत बांध रखी, कोई दिक्कत नहीं। हाथ निकाल के नहीं कर रहे, वो अंदर ही अंदर कर रहे हैं कंबल में, इशारे से नहीं, अंदर ओढ़े हैं, अंदर ही हाथ उनके, हाँ। अंदर ही रुकू है, सजदे में भी मतलब कंबल से ही ढका हुआ है। कोई हरज नहीं है, एक्शन तो पूरे कर रहे हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि खास तौर से औरतों को तो इसी तरह करना चाहिए, उनका तो पूरा जिस्म जो है वो सतर है। मर्दों का सतर तो बताया नाफ से लेके घुटनों तक, लेकिन औरत को तो पूरा सतर कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जरा कुफा निकाल देने से या खून निकल जाने से, क्या चीज? एक तो कुफा निकाल देने से खून निकल जाने से क्या होता है, फूट जाता है? ये एक मिकदार शरीयत ने बताई है कि जैसे आपका ये 10-20 पैसे का सिक्का होता है ना, इससे ज़्यादा खून या इतना कि बहने लगे खून, उससे टूट जाता है। कुफा निकाल देने से वो क्या होता है, मैंने तो पहली बार सुनी। वो चमड़े के मोजे, चमड़े के मोजे निकाल देने से टूट जाएगा फौरन। अगर आपने नियत कर रखी, नीचे दूसरा मोजा नहीं है, अगर आपने मोजा पहन रखा तो फिर आपने जब नियत करी थी कि मैं मसा करूँगा सारा दिन, अगर आपने नियत नहीं की और आपने चमड़े का ही मोजा पहना हो, आपका मसा नहीं होगा। और अगर आपने नियत की तो आपके सादे मौजों पे भी मसा हो जाएगा। जैसे आजकल मोजे चल रहे हैं, उसमें टखने खुले रहते हैं, उसमें मसा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। असल में तो पैर ढकना है, इसमें अकल नहीं इस्तेमाल करते। हज़रत अली ने फरमाया कि मौजों का मसा जो है वो हुक्म है, इससे मिसाल लिया करो कि तुमने अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करनी। पैर आपके सर्दी में ढके हुए होने चाहिए, सर्दी से बचाने के लिए एक रुख्सत दी गई है आपको, तो तभी वो तो उसकी बात है कि वो टखने क्यों खुला रखना। अच्छा है टखने भी ढके जिससे सर्दी से बचे, असल तो पैर ढके हुए होने चाहिए। ये फटी हुई पैंटें पहनने के लोगों को नमाज हो जाएगी? भाई ऐसा है, अगर सतर से नीचे फटी हुई है पैंट तो फिर तो हो जाएगी। यहाँ पे थाई पे फटी होती है इनकी। आपका दिल क्या कहता है? हुजूर ने फरमाया अगर मुफ्ती तेरे हक में भी फैसला देते और तेरा दिल ना माने तो मेरा दिल तो नहीं मानता। मेरा दिल तो ये कहता है कि नमाज नहीं होगी ऐसी फटी हुई पैंटों में जैसे चल रही है आज। फकीर भी नहीं पहनते, अब तो ये पहन रहे हैं अमीर। नहीं, जैसे ये सजदा करते हुए शर्ट निकल आती है बाहर पैंट में से, तो सतर खुल जाता है, तो क्या उस सूरत में नमाज होगी? देखो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन मकरू नमाज है वो, क्योंकि आप ये देखो ना, हिप लाइन अगर आपकी दिख रही तो दूसरे पीछे वाले का एक तो ध्यान भटक रहा, दूसरे आपकी बेपर्दगी, सतर आपका खुल गया दूसरों के सामने जो बड़े गुनाहों में है, तो वो तो नमाज आपने अदा कर ली बेध्यानी में मान लो, लेकिन बहुत केयर करनी चाहिए इसकी। नहीं, पीठ का हिस्सा अगर खुल गया। हाँ हाँ, पीठी का हिस्सा बता रहा हूँ, हिप लाइन वहीं होती है, वो नजर आ जाती है, लेकिन नमाज तो हो जाएगी, लेकिन कराहियत आती है, मकरू नमाज है। तो जैसा कि आपने बतलाया कि नमाज ना तो रसूल ने कज़ा पढ़ी है ना सहाबा ने, तो ये फिर कज़ा उम्री क्या चीज़ है? जैसे उनका सवाल यह है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहबा ने नमाज नहीं पढ़ी कज़ा, तो ये कज़ा उम्री क्या है? भाई ये सब हमारी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं, ना हुजूर ने कभी कज़ा उम्री पढ़ी, ना साहबा ने कभी पढ़ी। कज़ा उम्री का मैंने शायद आप पहली बार आए यहाँ पे, मैंने पिछले हफ्तों में सब बता दिया लोगों को कि नमाज अगर कज़ा हो जाए उनकी सिर्फ तौबा है, आगे न छोड़ने का अज़्म। एक बार अल्लाह को लग गया कि ये सीरियस है और आगे नहीं छोड़ेगा, तो बस आप सुरखरू हो पिछली नमाजों से इंशाअल्लाह, लेकिन अज़्म होना चाहिए, अगर आगे छूटेगी नहीं। ज़कात की कज़ा नहीं होगी, ज़कात की कज़ा, क्या कह रहे हैं? ज़कात की कज़ा। ज़कात की कज़ा। ज़कात नहीं दी और आप उसे देनी शुरू कर दी, तो क्या उसको पिछली 10 साल की देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, वो तो हक है ना, असल में उसमें तो लोग जुड़े हुए हैं ना साथ में, वो अल्लाह का हक है। अगर आप तौबा करो हो सकता है माफ़ कर दे, लेकिन मेरे हिसाब से देनी चाहिए अगर आपकी हैसियत हो गई हो और आपने पिछली ज़कात आपको याद आ गई। जैसे हज है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लेडी ने ये पूछा कि मेरी माँ पे हज फर्ज था और वो कर नहीं पाई, क्या मैं उनके बदले का हज करूँ? हाँ, वो अल्लाह का हक था, मुझे करना चाहिए। तो इसी तरह ज़कात भी जो है वो मामला, देखो नमाज जो है ना वो तो प्योर अल्लाह के लिए एक चीज़ है, बाकी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमतन जोड़ा हुआ है। जैसे हज जो है ना वो इज्तिमाइयत का एक नमूना है मुसलमानों में, आप उससे बेबहरा हो रहे हैं या ज़कात नहीं दे रहे, जो गरीब लोगों की फलाह के लिए अल्लाह ने तय किया 2.5%। तो ये जो मामले हैं ये आपको ज़रूर पिछले भी पूरे करनी चाहिए, तौबा भी करनी चाहिए, तलाफ़ी भी करनी चाहिए।
मतलब तौबा भी और कफ़ारा भी। फिर जनाजे की नमाज में अगर फातिहा ना पढ़े तो नमाज हो जाएगी? आप बताओ, हुजूर की हदीस पाक तो है कि बिना फातिहा की कोई नमाज नहीं होगी नहीं। जैसे हमारे यहाँ जो नहीं, यहाँ क्या पढ़ किताबें हैं? जो पतली नमाज की किताब आती है उसमें तो फातिहा है नहीं। नहीं, पतली नमाज की किताब अल्लाह के रसूल ने तो नहीं भेजी, वो तो इन्होंने लिखी लोगों ने। अब ये कुछ का कुछ करते रहे, इसका तो इलाज ही नहीं है। मैं तो हदीस बताइए आपको, बिना सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं है, हदीस पाक बता रहा हूँ। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पढ़नी चाहिए, लोग ना पढ़े, आपको इंडिविजुअल खड़े होना अल्लाह के आगे। नहीं, वो इतने में तो तकबीर कह देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं पढ़ता हूँ, मैंने आज तक नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। सलाना आपने नहीं, सना भी पढ़ो आप। इतने में तो तकबीर कह देते हैं वो अल्लाह। नहीं, तकबीर कहते हैं, आप 10 सेकंड लेट पढ़ दो तकबीर, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? आप तो हुजूर का हुक्म मानो, इनका नहीं। जहां इनका हुक्म और हुजूर का हुक्म चल लगता हो कि हुजूर के हुक्म पे चल रहे, वहां इनकी ही मान लेंगे हम। और कोई बात कीजिए जहन में भाई। तो जिसके पास जिन्हें हज फर्ज है वो एक तो हज कर चुके, लेकिन उनके जो भाई हैं या कोई रिश्तेदार हैं वो उसमें इस्तात नहीं है हज के लिए, तो क्या वो दोबारा वो आदमी जो हज कर चुका फर्ज जिस पे वो करा सकता है उनको हज? कैसे करा देगा जब उन पर इस्तात ही नहीं है, उन पर हज फर्ज ही नहीं है, नफली हज होगा। जो पैसे वाला उनका हज कराएगा अपने किसी गरीब भाई का या बहन का, क्योंकि उनके ऊपर हज फर्ज नहीं है, तो वो जो है उनका नफली हज गिना जाएगा, भाई का भी बहन का भी। उन पर फर्ज ही नहीं रखा अल्लाह ने, उनका फर्ज हज नहीं गिना जाएगा। जूतों पे मसा हो सकता है? जूतों पे जूतों पे कुछ उलमाए दीन कहते हैं होता है, मगर क्योंकि हुजूर की ऐसी कोई हदीस नहीं है, तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। मैं तो मौजू पे मसा मानता हूँ जूतों पे, क्योंकि जूतों के तलवे जो है ना, उस पर आप सड़क पे भी चलते हो उनसे। और हमारे यहाँ का जो इलाका है इसमें तो गंदगी बहुत है, जानवर सड़कों पे ऐसे फिरते हैं, बहुत गंद है। वरना वहाँ अरब के इलाके में साफ़ सुथरा होता था, तो वहाँ तो नमाज भी पढ़ दिया करते थे जूतों में। अब भी जो गैर मुल्क है, मैंने कई वीडियोस देखी हैं, वो नमाज पढ़ देते हैं उसमें जूतों में सड़क पे। क्या टाइम हो गया? 9:05। बस ठीक हो गया इंशाल्लाह। और कोई जहन में कोई बात रह गई कोई किसी की? वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नमाज 8 बजे कर दे भाई, सबका मशवरा है।